Hello everyone, this is the third revision video of chapter 4 Human Development as well as the last revision video of this chapter. In this video, we will discuss the international comparison on human development of different countries. That in the world, how many countries are accessed as a high developed countries, high human developed, how many countries access as medium developed countries, and how many countries access as low human development countries. But before it, we should know about that from which year this human development index included in the area of the development. So, since 1919, United Nation Development Programs according to UNDP. Since 1990, the UNDP has been published the Human Development Report every year. यानी 1919 से UNDP यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम हर ईयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है. This report provides a rank-wise list of all members country according to the level of human development. As we explained in the second revision video of this chapter, that three key areas having the 1/3 part of the human development, यानी एजुकेशन, हेल्थ और एक्सेस टू रिसोर्स, तीनों ही डायमेंशंस को 1/3 मार्किंग के अकॉर्डिंग हम किसी भी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. और उसके अकॉर्डिंग फिर UNDP उन डाटास के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाता है जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, और उनके अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट मेंबर्स कंट्री की लिस्ट को पब्लिश करता है. So the Human Development Index and the Human Poverty Index are two important indices to measure Human Development Index used by the UNDP. यानी UNDP यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम जिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रेस्क्राइब या पब्लिश करता है उसके लिए ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोनों के डेटा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, Bhutan is the only country in the world which access the GNH, Gross National Happiness, as a measure of the country's progress. जैसा कि हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड के लिए जो नॉर्मल डेटाज हैं लाइक एक्सेस टू रिसोर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ, these three area for the entire world human development index, ये तीन मेजर्स हैं या की एरियाज हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सेस करने के किसी भी कंट्री में. लेकिन भूटान एक ऐसी कंट्री है जो अपने यहाँ यानी कि इंडिविजुअल भूटान कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सेस करने के लिए हैप्पीनेस को भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर की फॉर्म में मानता है. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन टू नीड टू बी फोकस. Material progress and technological development are approached more cautiously, taken into the consideration, and the more and then harm they might bring to the environment or the other aspects of the cultural and spiritual life of the Bhutanese. यानी भूटानीज के अकॉर्डिंग उनकी कल्चरल लाइफ और आस्पेक्ट्स इन सब चीज़ों पर, हैप्पीनेस पर ही डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट विल सी the international comparison of the different countries. If we see the international comparison of different countries, that international comparison of human development are interesting. Size of the territory and per capita income are not directly related to human development. This is a simple method. यानी किसी भी कंट्री का साइज़, वहाँ का लैंड एरिया वहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है. इट मीन्स किसी कंट्री के जितनी बड़ी टेरिटरी या साइज़ होगा या पर कैपिटा इनकम जितनी ज़्यादा होगी, इट डजंट मीन दैट द ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ मोर इन दोज कंट्री. इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा. इवन ऑफन स्मॉलर कंट्री हैव डन बेटर देन लार्जर वन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट. बल्कि कुछ छोटी कंट्री जो एरिया वाइज भी छोटी हैं और इनकम वाइज भी कम है, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट बड़ी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है.
Similarly, relatively poor nation have been ranked higher than richer neighbor in term of human development. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है श्रीलंका. As you know, श्रीलंका, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, these have a higher rank than India. इंडिया के कंपैरिजन में इन तीनों ही कंट्रीज़ के एरिया भी छोटे हैं और इनके इनकम लेवल भी कम है, लेकिन इनका ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं ज़्यादा है. सो व्हाट इज़ द कॉजेज बिहाइंड दैट? So the Human Development Index, despite having smaller economies. Similarly, within India, Kerala performed much better than Punjab and Gujarat in human development, despite having lower per capita income. और इसी तरह अगर हम सिर्फ इंडिया के बारे में फोकस करें तो केरला कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है पंजाब और गुजरात के कंपैरिजन में, जबकि केरला का पर कैपिटा इनकम पंजाब और गुजरात से कहीं कम है. सो कंट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इस बेसिस पर, इंटरनेशनल कंपैरिजन के बेसिस पर हम कंट्रीज़ को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं. सो हाई कंट्रीज़, मीडियम कंट्रीज़ एंड लो कंट्रीज़. जो कंट्रीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.8 से अबव रैंक करती हैं, दे कॉल्ड एज हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़. जो कंट्रीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.5 से 0.799 के बीच स्कोर करती हैं, दे कॉल्ड एज मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़. और जो कंट्रीज़ 0.5 से भी लोअर स्कोर करती हैं, दे कॉल्ड एज लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़. सो व्हाट इज़ द रीज़न behind the high developed countries, low developed countries and medium developed countries? Countries with high human development index are those which a score of over 0.8, यानी जिन countries का index 0.8 से above या उसके आसपास होता है. According to the Human Development Report of 2005, this group include 57 countries. This is according to 2005. Norway, Iceland, Australia, Luxembourg, Canada, Sweden, Switzerland, Ireland, Belgium and United States. These are the top 10 countries with high value index. और सबसे फर्स्ट स्टैंड पर कौन है? नॉर्वे. अब इन कंट्रीज़ का हाई डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों है? बिकॉज दीज कंट्री हाई ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोज वेयर a lot of investment in social sector has taken place. Altogether, a high investment in people and good governance had set this group of countries apart from the others. इन कंट्रीज़ का हाई डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि ये कंट्रीज़ किस पर इन्वेस्ट करती हैं? सोशल सेक्टर पर, यानी कि पब्लिक सेक्टर पर, पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए, और गुड गवर्नेंस है, और वो कंट्रीज़ के डिफरेंट एरियाज़ में जो सोशल एमिनिटीज़ हैं, सोशल फैसिलिटीज़ हैं, उनको अवेल करती हैं. देन द कंट्रीज़ विद मीडियम इंडेक्स वैल्यू, जिन कंट्रीज़ की मीडियम इंडेक्स वैल्यू है उसके रीज़न क्या है? मोस्ट ऑफ दीज आर कंट्रीज़ विच हैव एमर्ज इन द पीरियड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका एमर्जेंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है, यानी 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1945 के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड है 1939 से 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड है, उसके बाद जिनका एमरजेंस हुआ है, यानी उसमें इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जो उसके बाद फ्रीडम जिसको मिला है, यानी जिनका राइज अप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है, यानी 1945 ईयर के जिनका बाद एमरजेंस हुआ है. Some countries from this group were former colonies, while many other have emerged after the breakup of erstwhile Soviet Union in 1990. इसमें कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में थी पहले, जैसे इंडिया है, अफ्रीका है, और जिनका बाद में फ्रीडम हुआ है, और रशियन कंट्रीज जो थी जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी और जो 1990 में उसके बाद फ्री हो गई, सेपरेट हो गई. देन व्हाट इज़ द कॉजेज बिहाइंड द लो लेवल ऑफ कंट्रीज? A large proportion of these are small countries which have been going through political turmoil. यानी कि ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ लो इंडेक्स हैं, जिनका रीज़न क्या है? वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी. ऐसी कंट्रीज जहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल की कंडीशन है, यानी और सोशल इंस्टेबिलिटी है, डिफरेंसेस हैं किसी भी बिहाफ पे, उन कंट्रीज़ में
इन सब कॉजेज़ की वजह से वहाँ सिविल वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट होती रहती हैं और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो बेसिक नीड्स पर फोकस नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। साथ ही इन कंट्रीज़ में ड्यू टू द लो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ फेमाइन और हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ भी बने रहते हैं। सो दिस इज़ अ अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट फॉर दिस ग्रुप थ्रू आउट ऑफ पॉलिटिक्स। इसलिए ये अर्जेंट नीड है कि इन कंट्रीज़ में हम ह्यूमन डेवलपमेंट को हाई करें। और उसको हम कैसे हाई कर सकते हैं? हाउ कैन वी हाई द ह्यूमन डेवलपमेंट इन दीज कंट्री? बाय गिविंग द गुड गवर्नेंस एंड बाय फोकसिंग द public oriented facilities and amenities to the population. So in this way we categorize and measure the different countries' level of human development. On the other hand, we can understand that places with human development tend to spend more on defense rather than social sector. यानी ऐसी कंट्रीज जहाँ लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सोशल फैसिलिटीज़ के कंपैरिजन में अपनी डिफेंस सर्विसेज पर, लाइक पाकिस्तान, डिफेंस सर्विसेज पर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर इन कंडीशंस में ह्यूमन डेवलपमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है. सो दिस शो दैट कंट्री टेंड टू बी लोकेटेड इन द एरिया ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड हैव नॉट बीन एबल टू इनिशिएट एक्सलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इन कंडीशन की वजह से वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो रेट है वो एक्सलरेट नहीं हो पा रही है. Thank you. You need to focus the NCERT solution also, the different questions. This is the third and the last revision video of this chapter. Thank you.